Good evening, dear students. Very warm welcome to all of you at this beautiful, amazing platform, Cerebellum Academy. Myself, Dr. Shrikant Verma. So, right now, in this our today's CBI anatomy session, with the too many concepts, from the basics of the first MBBS to the all other clinical subjects, and then we are encroaching the NEET PG, INICT, FMG, even USMLE and the PLAB pattern. So today's topic is median nerve. So, before starting this session, we are starting with the beautiful lines. मुश्किलें मुश्किलें इंसान का हौसला आजमाती हैं, सपनों का पर्दा निगाहों से हटाती हैं। गिर गया गिरकर संभल ए आदमी, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं। As you all know, in this our one very beautiful movie of the Hollywood, Captain America, he is getting the defeat many times. थैनोस उसे हरा चुका होता है, कैप्टन अमेरिका मरने वाला होता है, लेकिन बेटा याद रखना, कैप्टन अमेरिका अपनी हार नहीं मानता, वो फिर से खड़ा होता है और लड़ता है। इन द सिमिलर वे दिस लाइफ इज वेरी हेक्टिक, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी हार्ड, बट रिमेंबर, यस, आदमी या तो जीतता है या फिर सीखता है, आदमी हारता कभी नहीं है। जब तक हम कोशिशें करते रहते हैं, जब तक हम लड़ते रहते हैं, हम जीत रहे हैं। आदमी हारता उसी दिन है जिस दिन वो कोशिश करना छोड़ देता है। सो नेवर 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 क्विट। Yes, learn from this Captain America. So this is the our starting part. So tell me, dear students, that everything is okay. We are starting with this beautiful motivating points this session. Please inform me that audio video everything is clear. Yes, Woodcutter Rawat, good evening beta. Baby dog, good evening. Robin Martin, good evening. Vinay Pathak, good evening beta, good evening. Hope audio video everything is okay. Okay, so we are going to start this session. Okay sir, in this session we are not only going to learn about the median nerve, but also we are going to learn about the our different clinical questions. Yes, on the our name of the Captain America, the funny mnemonic will be Captain America. Yes, he was bachelor in physiotherapy. वो एमबीबीएस नहीं कर पाए थे, बैचलर इन फिजियोथेरेपी थे, इसलिए उन्होंने शील्ड की टीम, एवेंजर की टीम ज्वाइन कर ली थी। एक फनी तरीका ताकि हम याद रख सकें। यस, वी आर गोइंग टू लर्न in this chapter C for carpal tunnel syndrome. We will learn about the A for app thumb deformity. We will learn in this session about P for pointing index, which is also considered as the Ostner clasp test in our orthopedics. So we will integrate this anatomy beautifully with our orthopedics also. Okay, B for Benedict hand, also this is known as the Pope hand deformity. Then we will look for the P for phalanx test, pain test, which is the MCQ from the NEET PG 2021, and then we will see about our Tinel's sign. So these are our different question. Yes, so one by one we are going to look about this all the things. So this is the introductory part about our today's session. Yes, this session is not only for the NEET PG, INICT, our FMG students, but it is also including all the basics of the first MBBS. So in the first MBBS prof exam, the questions are asked that describe the median nerve under the following headings, and this is the 10 marks question. तो बेटा याद रखना, जिसका बेसिक्स स्ट्रांग है, जिसका फर्स्ट एमबीबीएस स्ट्रांग है, उसका नीट पीजी, आईएनआईसीटी, एफएमजी एग्जाम हर चीज क्रैक होगा. सो आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. यस, we will learn just like the radial nerve, the formation of the median nerve. Then we will learn about the course of the median nerve. Then we will see about the branches, and then we will see the clinical. How I will teach you this all the things from the our different standard टेक्स्ट बुक्स. थ्योरी हम कवर करेंगे क्योंकि थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हर चीजें क्लियर होती है. देन वी विल ड्रॉ द इमेज ऑल्सो. एग्री एवरीबॉडी, गेटिंग द पॉइंट? ओके, सबको समझ में आ रहा है? फाइन. तो ये सेशन है बेटा आप सभी लोगों के लिए टोटली फ्री है. प्लीज इन्फॉर्म योर ऑल द फ्रेंड्स related to the NEET PG, INICT, as well as the FMG students, as well as the first MBBS students. Okay, so this all the session are very very high yielding and very important, and definitely it's totally free. So please inform to your all the friends. Okay sir, so now we are going to look what are the different short note from this unit. From this unit the short note is describe the median nerve. ओके, तो हमको मीडियन नर्व को डिस्क्राइब करना होता है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है.
and its branches were in forearm. I taught you that radial nerve is important in the arm, median nerve is important in the forearm, and ulnar nerve is important in the hand. Why? Because they are major branches. Radial nerve mainly it is giving the branches in our arm. Do you remember the mnemonic? In the radial groove, LMP. Yes, yes, above the radial groove, LMP. In the radial groove, MLA पोलो, एंड बिलो द रेडियल ग्रूव बेबे. ऐसा हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, फिर ट्रिक और निमोनिक भी देखा था. These are the different branches in the radial nerve in our arm. But when we are talking about the forearm, here the main nerve in the anterior compartment. Your answer is medial nerve. तो बेटा इसकी मेजर ब्रांचेस कहाँ आती है? सर, it is asked in the our forearm. That's why median nerve in the forearm is asked in your UG. Okay? और इसी तरीके से ulnar nerve, it is the musician nerve. It is giving the mainly branches in the hand. So remember the musician nerve is the main nerve in the hand part. Agree everyone? सबको समझ में आ रहा है बेटा? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. यस वी आर, यस थैंक यू वुड कटर, थैंक यू फॉर योर एप्रिशिएटिंग वर्ड्स. नाउ लुक हियर. इसी तरीके से बेटा कभी कभी डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आता, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम, क्योंकि मैंने आपको कहा है एनाटॉमी इज डायग्राम, डायग्राम इज एनाटॉमी. ओके, सो वी विल प्रैक्टिस अबाउट द well label diagram in the our forearm 5 marks, and then we will see the different MCQs for the NEET PG, INI-CET, FMG exam and the our USMLE PLAB, जिसके लिए मैंने आपको बताया कैप्टन अमेरिका जो थे बैचलर इन फिजियोथेरेपी थे. एग्री एवरीवन? फाइन. तो यहां पर हम देखेंगे आपके अलग अलग शॉर्ट नोट आते हैं, वाइवा क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं. किस पर? यस, CAP BPT पर. ओके बेटा, फाइन. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? C फॉर सर, देयर इज अवर कार्पल टनल सिंड्रोम, ये हम पढ़ेंगे. फिर हम एप्थम डिफॉर्मिटी, फिर पॉइंटिंग इंडेक्स, ऑशनर क्लास्प साइन, बेनेडिक्ट और पोप हैंड साइन. देन वी विल सी अबाउट द फैलेंस टेस्ट, देन पेन टेस्ट, एंड देन वी विल सी अबाउट द अवर टेनल साइन. एग्री बेटा? आगे बढ़े, ठीक है. यस सिंधु सागर, नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट. चलिए, तो हम इन सारी चीजों के क्लिनिकल इंटीग्रेशन करेंगे अपने कैप्टन अमेरिका के साथ. और डेफिनेटली सबसे पहले टोनी स्टार्क आया, आयरन मैन आया, जार्विस आया, फिर उन्होंने हैंड ओवर किया स्पाइडरमैन को, और अब ये जो स्पाइडरमैन है वो आ रहा है हमारे यस कैप्टन अमेरिका एवेंजर की शील्ड के साथ. तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एवेंजर की स्टोरी भी साथ में पैरेलल लेते चल रहे, ताकि आपको ये चीजें क्लिक करे एग्जाम टाइम में. बेटा इतना कैप बीपीटी जरूर याद रखना, ये आपके लिए ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, सर्जरी सभी चीजों में इंपॉर्टेंट है. ओके, चलो तो हम मीडियन नर्व की बात करते हैं. डू रिमेंबर हमने पढ़ा था कि अपर लिम्ब की जितनी भी नर्व्स होती हैं सर, दीज ऑल आर अराइजिंग फ्रॉम व्हाट? ब्रेकियल प्लेक्सस. यस, फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस देयर वाज द फॉर्मेशन. कैसे बना था मीडियन नर्व? एक समरी कर रहे हैं सर. हमने ब्रेकियल प्लेक्सस वाले पार्ट में देखा था, इसके दो रूट थे. इट वाज हैविंग द lateral root and medial root, lateral root of the median nerve and medial root of the median nerve. सिंपल. अब बेटा खुद सोचो, जब वो ब्रेकियल प्लेक्सस बना, then it will run into the where sir? It will reach into the axilla, and after the axilla अब क्या आया सर? This is the arm. तो एक्सिला के बाद ये कहां पहुंचेगा? आर्म में. एंड आफ्टर द आर्म इट इज गोइंग डाउन. सो दिस इज द आर्म, हियर इज द फोर आर्म. द जंक्शन बिटवीन आर्म एंड द फोर आर्म, यस इट इज योर क्यूबाइटल फोसा. तो इसके बाद हमको क्या हेडिंग देना है, क्या याद रखना? क्यूबाइटल फोसा. नो नीड टू मग अप. एनाटॉमी इज वेरी इजी, वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. in your own body you can remember. हाँ भाई, median nerve it has been formed in the brachial plexus, then it is reaching into the axilla, then it is reaching into the arm, then it is reaching into the cubital fossa, then it will reach into the forearm, then it will reach into the hand. So simple, बहुत आसान है. Okay, so after the cubital fossa it will reach into the forearm and then into the hand. इतना याद हो गया क्या सबको? कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत आसान है. आसान समझोगे आसान लगेगा, कठिन समझोगे कठिन लगेगा. ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्मेशन, देन इन एक्सिला, देन इन आर्म, देन इन क्यूबाइटल फोसा, देन इन फोरआर्म एंड देन इन हैंड. बहुत ही सिंपल. एग्री? फाइन. ओके सर. So now what I want to tell you, sir, after this all, how this median nerve is running, just एक simple diagrammatic presentation. Look here, sir, there was our brachial plexus. Yes. So this is having the lateral root and the medial root. Okay, sir.
Now this nerve is uniting together. Yes, two roots are uniting together and making the median nerve. Just एक simple diagrammatic presentation. This is the schematic presentation. एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन इससे याद करने में आपको आसान रहेगा. What I want to tell you, sir, there is the lateral root of the median nerve. Here is the medial root of the median nerve. बेटा बार बार रिवीजन करवाऊंगा ना, बार बार. ओके एक तो कहानी यहां पर हमने सुन ली, देयर वॉज द वन स्टोरी, एंड राइट नाउ आई एम टेलिंग यू वन अनदर स्टोरी. Then I will repeat with that standard textbook. Then I will draw the diagram. 4 times we are going to learn this median nerve in this session. आराम से, be patience, keep patience. Okay? जैसे हम चिकन चिली खाते, पनीर चिली खाते हैं, एक एक बाइट इंजॉय करते हैं. In the similar way, we have to enjoy the each bite of the knowledge. Agree everybody? Getting the point? Okay, sir. So there are the two roots. कैसे बना? Sir, these are coming from the our yes brachial plexus. Okay, sir. Now it is running in the our which part? Sir, it is running in the our arm. Yes, sir. It is running within the our arm. So what is happening? Sir, there is the one artery. Do you remember which artery? In the axilla, there is the axillary artery and the our brachial artery. Yes, sir. Diagrammatic presentation. Suppose this is our axillary artery and the our continuation of the axillary artery, that is the our brachial artery. Simple. So one beautiful concept to remember beta, at the mid of our arm, okay, which is characterized by the insertion of the coracobrachialis. ये जो मीडियन नर्व रहती है वो lateral to medial आ जाती है, and then it will run straight. Yes, it is a very important point, especially for the first MBBS students. Yes, at CBI. What is the CBI? CBI मीन्स कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड एनाटॉमी, लेकिन यहां पर CBI कुछ और नहीं है. दिस इज अवर कोरेको ब्रेकियलिस insertion. Okay, at the coracobrachialis insertion, this nerve is crossing the artery. Which artery? This is our artery. You can say in the axilla, the same is known as axillary artery, but in the arm it is known as the brachial artery. Getting the point? Yes, sir. Fine. So it is crossing from where, sir? It is earlier lateral to the axillary artery, lateral to the brachial artery, but at the coracobrachialis insertion, it is crossing the artery from lateral to the medial side. This is very important viva question for the first MBBS students. At which level? Better remember, at the coracobrachialis insertion. Agree? Okay, sir. Now look further. Then this nerve is running straight down at the supracondylar area. Which area? Sir, this is running at the our yes supracondylar area. तो बेटा ये नीचे आया और किधर रन कर रहा है? Sir, it is running at the supracondylar area, and then it is reaching into the our cubital fossa. Yes, do you remember there is a one relation M B, then there is the biceps tendon, which you can remember the B for biceps tendon, and then there is the radial nerve. Yes, sir, there was a radial nerve. We all are aware with this very important relation. Yes, ये क्या है बेटा आपका फॉर्मूला? MBBR. Sir, there are the very important relation. M for median nerve. Sir, B for brachial artery. Sir, B for biceps tendon, and R for this is radial nerve. What I want to tell you, MCQ, the medial most structure in the cubital fossa is median nerve. Then what you can remember better, lateral to it there is the brachial artery, and lateral to it there is our biceps tendon, and then lateral to it there is our what? Radial nerve. 4 MCQs. Okay, fine. Later I will teach you, if there is the fracture at this area just above the condyles of the humerus, then it is known as supracondylar fracture. Yes, very important point, supracondylar fracture. This is beautiful ortho and not, and in X-ray you will observe this situation, that is the radio integration. We are using the word conceptual brainstorming integration.
सो इन केस ऑफ द सुप्राकॉन्डल फ्रैक्चर विच स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व, तो बेटा ये आपका एफएमजी का भी क्वेश्चन है, एफएमजी जनवरी 2023. ओके, द मीडियन नर्व इज इन्वॉल्व, द ब्रेकियल आर्टरी इज इन्वॉल्व. गेटिंग द पॉइंट? And due to the involvement of the median nerve at this area, you will get the gun stock deformity in which hand will turn in inside way, that is the cubitus varus. अब बेटा ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, ये ऑर्थोपेडिक्स की फाइनल ईयर की है, तो ये बातें जब आप इंटर्नशिप में पहुंचेंगे, फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, तब समझ में आएगा अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं. और अगर नीट पीजी आईएनआईसीटी के स्टूडेंट है तो बेटा ये तुरंत आपका कोरिलेट हो रहा होगा कि अरे वाह, ये तो हम ऑर्थोपेडिक्स फाइनल ईयर की चीजें कर रहे हैं. इसलिए फर्स्ट ईयर के बच्चों याद रखना, अगर आपका फर्स्ट एमबीबीएस क्लियर है तो आपका फाइनल ईयर आगे आने वाले हर ईयर बहुत स्ट्रांग होंगे. ओके, सो दिस इज द अवर cubitus varus condition which is also known as the gun stock deformity. yes, बहुत बढ़िया विश्वास, नॉलेज को शेयर करते चलो. 3 point bony relationship is maintained, बहुत बढ़िया. and in the similar way when the brachial artery is involved, so there is a ischemia of the forearm. okay, when there is ischemia there will be the inflammation, pathology. ischemia leads to the inflammation, and due to the inflammation there will be the rubor, tumor, dolor, calor, functionalisa. So this all will lead to the increase in the pressure, compartment syndrome, surgery for which you will cut the skin, superficial fascia and deep fascia, which is known as the fasciotomy. तो बेटा ये नीट पीजी 2021 सर्जरी का क्वेश्चन है. आपको क्या करना पड़ेगा? फेशिया की टॉमी करनी पड़ेगी. मैंने आपको बताया है एनाटॉमी. एना मीन्स टू सी, टॉमी मीन्स देखना. तो आपको क्या करना है बेटा? टॉमी करना है, कटिंग करना है. किसका? फेशिया का. जैसे ही फेशिया को आप कट करोगे प्रेशर रिलीज होगा और यहां पर ब्लड सप्लाई बेटर इंप्रूवमेंट हो जाएगी. अगर मान लो ऐसा आपने नहीं किया तो यहां पर इन्फ्लामेशन के कारण फाइब्रोसिस हो जाती है, मसल्स जो है सिकुड़ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है. दिस वाज स्टडीड बाय द वोकमैन, दैट्स व्हाई इट इज द वोकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर. तो ये बहुत प्यारे प्यारे इंटीग्रेशन है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पी, पेन, पैरास्थेशिया, पैलर, दिस ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स. तो ये हमने एक इंटीग्रेशन किया, इसको आप रिलेटेड सब्जेक्ट में पढ़ोगे. बट कैन यू रिमेंबर median nerve, it was formed, then it was running lateral to the axillary artery, brachial artery, then at the CBI, at the coracobrachialis insertion, it is crossing from lateral to the medial side, then it is running medially to the brachial artery, then it is running at the supracondylar area, then in the cubital fossa it is having the relation MBBR. बहुत आसान है. anatomy is so elegant, so beautiful, just looking like a wow. Getting the point? Okay, now look here, this is reaching into the our forearm. अब बेटा यहां पर क्या होता है? एक मसल होती है. आराम से बेटा प्यार से समझो, फिर मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, बार बार पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, इसको याद कर डालेंगे. सर हियर इज अवर प्रोनेटर टेरिस मसल विच इज हैविंग द टू हेड्स. यस, प्रोनेटर टेरिस के दो हेड होते हैं. वन इज कमिंग फ्रॉम द ह्यूमरस, ह्यूमरल हेड, अनदर इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द अल्ना, अल्नर हेड. अदरवाइज यू कैन से द सुपरफिशियल एंड द डीप हेड. तो बेटा ये मीडियन नर्व ऐसे करके आती है, ऐसे. yes, it is running in between the two heads of the our, yes, you can say the our pronator teres. तो ये कौन सी नर्व है सर? दिस इज आवर मीडियन नर्व, एंड हियर इज सुपरफिशियल हेड एंड दिस इज डीप हेड ऑफ व्हाट? यस, ऑफ मसल. कौन सी मसल? प्रोनेटर टेरिस. डू यू रिमेंबर? मैंने आपको एक बहुत बढ़िया सा नीट पीजी का क्वेश्चन बताया था. रेडियल नर्व, posterior introitious nerve. Yes, the question, radial nerve or the branch of the radial nerve, posterior introitious nerve, it pierces the which muscle? Supinator. Sir, it pierces the supinator. And in the similar way, this is the question, the median nerve pierces which muscle? Answer is the pronator teres. Getting the point? Yes, it is piercing the in between the superficial and deep head. तो ये आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन. फिर से, radial nerve pierces which muscle? Supinator. While the median nerve, it is piercing the pronator teres muscle. Agree बेटा? Yes, विश्वास बहुत बढ़िया. When the pressure is more than 30 mm of the edge. बहुत बढ़िया. Okay sir. Now this median nerve is coming. So this median nerve is supplying all the muscle of the forearm. Do you remember the rule? जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है. So this nerve is running
at the our forearm area. So it will supply all the muscles of the anterior compartment of the forearm. Agree beta? Okay, except ऐसी मसल जो अल्ना की तरफ थी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस एंड द मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिस्टम प्रोफंडस, इसको बस सप्लाई नहीं करेगी, बाकी सबको ये सप्लाई करेगी. ओके सर, नाउ इट विल रीच into the our carpal area. Remember, at this carpal area there is the one deep fascia modification. ये सारी चीजें मैं आपको भी बताऊंगा. ये स्कारपल बोन के ऊपर यहाँ पर आपको डीप फेशिया का एक मॉडिफिकेशन मिलता है. यस, इट इज रिटेनिंग द फ्लेक्सर टेंडन. नाम को सोचो, नाम को तोड़ो. यस, रिटेनिंग द फ्लेक्सर टेंडन, that's why it is known as, yes, it is retaining, that's why it is known as the retinacula. नाम को समझो, retaining, that's a retinacula. Okay, retaining, fine, this is the retaining the flexor tendon, that's why it is known as the flexor retinacula. It is retaining the flexor tendon, it is holding the flexor tendon, that's why it is the flexor retinacula. Yes, it is passing below the flexor retinacula एंड नाउ इट इज रीचिंग इनटू द आवर हैंड. इसकी ब्रांचेस होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी कोर्स को समझते हैं. यस, इट इज रीचिंग इनटू द आवर व्हाट सर, इट इज रीचिंग इनटू द आवर hand part. Okay sir, now in the hand it is giving the different branches. It will give the muscular branches, it will give the sensory branches, I will tell you later. Okay, fine. So this is a simple way to remember. Now I am going to show you in the 3-dimensional way. अच्छा, कुछ और क्लिनिकल समझते हैं. Yes, here is our pronator teres muscle. There are the two head, superficial head and deep head. So this nerve is passing in between the two heads. Okay sir, sometimes there is the compression of the median nerve. This median nerve is getting compression of median nerve. Where? In between two heads of our what? प्रोनेटर टेरिस. यहां पर ये कंप्रेस हो जाती है. दिस इज नोन एज प्रोनेटर टेरिस syndrome. This is again your clinical. What I want to tell you, try to understand. I'm going to tell you, I'm coming to you close. Okay, catch this point. ये देखो बेटा, suppose this is your which nerve sir? This is the our median nerve and there are the two heads of the pronator teres, superficial head, deep head. So this median nerve is passing in between the two heads of the our, yes, pronator teres. फिर से, this is superficial head of the pronator teres, here is deep head of the pronator teres. The median nerve is passing in between. When there is a compression of the median nerve, when there is a compression of the median nerve between the two heads of pronator teres, this situation is known as pronator teres syndrome. आसान है, बहुत आसान है. दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विथ योर, यस, यू कैन से द ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. एग्री? ओके सर. सो नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू सर, दिस इज द आवर कोर्स. ये हमने क्या देखा? मीडियन नर्व का कोर्स देखा. चलो आगे बढ़ते बेटा. नाउ दिस इज द योर टेक्स्ट बुक. फिर से मीडियन नर्व पढ़ा रहा हूं. ओके, आई टॉट यू इन सिंपल वे one time here, this was the second time, now I'm going to tell you the third time and then I will draw the diagram also fourth time. Okay, revision is more important than study. जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे बेटा उतना ही आपके लिए अच्छा है. Okay, so now we are going to look for the our next part. Try to understand sir. The median nerve is formed by the brachial plexus. Okay sir, it is having the lateral root, medial root. Okay sir, then it will run into the axilla, then from the axilla it will run into the arm. Yes, and after the arm I will teach you this nerve sir, it will reach into the forearm. Okay, and after the forearm the nerve will reach into the hand. Getting the point? Agree everybody? Fine. यस संजय, राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ऑल काइंड ऑफ द माय pranam and abhinandan to all the dear students. Okay, yes, vanakkam also to all of you, namaste also to all of you. Okay, so now what we are going to look for this sir, this is the course. देखो बेटा आराम से, root value sir, this our
median nerve, it is having the lateral side root, medial side root. Okay, sir. So it is having the lateral root and medial root. Both the roots are uniting and making the median nerve. Yes. Do you remember the lateral root was coming from the C5, C6, C7. So what is the root value of the lateral root? MCQ. Sir, the root value of the lateral root is C5, 6, 7. I am marking the MCQ, NEET PG MCQ. While the medial root, sir, this is coming from the C8 and the T1. So another MCQ I am highlighting here, it is having the root value of the C8 and T1. MCQ. So the question, what should be the root value of the median nerve? Another your MCQ, sir, C5, 6, 7, 8 and T1. Another one more MCQ we had cracked. Now try to understand. This median nerve is having all the roots of the brachial plexus. Any other nerve which is having all roots of the brachial plexus? So answer is radial nerve. Do you remember the radial nerve was the thickest nerve ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. जहां जहां मैं ये क्यों लिख रहा हूं वो आपका एमसीक्यू है, वो आपका वाइवा क्वेश्चन है, वो आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, थ्योरी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. सो रिमेंबर, यस, ओनली 2 नोस विथ ऑल रूट्स ऑफ व्हाट? ब्रेकियल प्लेक्सस. ये एक और मैंने आप लोगों के लिए नीट पीजी का एमसीक्यू बताया, सर, दैट इज रेडियल नर्व एंड द मीडियन नर्व. देखो कितना बढ़िया है. ओके, सो रिमेंबर, दिस लाइफ इज वेरी हेक्टिक, द स्टडी इज वेरी हेक्टिक, बट व्हेन यू चेंज योर विजन देन एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज. कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो. ओके, तो बेटा जब हम कोशिशें करते हैं तो हर चीज पॉसिबल होती है. दीज ऑल आर वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बट वी आर मेकिंग इजी. आराम से, प्यार से, धीरे धीरे हम इन सारी चीजों को पढ़ते चले जा रहे हैं. एग्री? ओके सर. नाउ दिस मीडियन नर्व इज रनिंग इन द एक्सिला. देयर वाज द वन वेरी वेरी घटिया क्वेश्चन. वो आपको हैरान परेशान करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं. कौन? एग्जामिनर. यस बेटा, याद रखना, एक बार एमसीक्यू आ गया नीट पीजी में, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ द मीडियन नर्व इन द आर्म? ऑप्शन था A1, B2, C3, D था नन. यस, तो बोलो बेटा क्या आंसर है? सर, कुछ बच्चों ने सोचा, दिमाग लगाया, अरे यार कुछ तो होगा, किसी ने 1 लगा दी, किसी ने 2, किसी ने 3, बट यू कैन सी द मीडियन नर्व इज मेन नर्व ऑफ द फोर आर्म. इट इज नॉट गिविंग एनी ब्रांच इन द आर्म. तो बेटा यहां पर कोई ब्रांच नहीं देता. आपका एमसीक्यू का आंसर था बेटा नन. यस सिंधु सागर, यू आर राइट, 0. नन इज द आंसर. उन्होंने 0 भी नहीं दिया था, उन्होंने नन दे दिया था. ये एक ओल्ड क्वेश्चन था. ओके, तो इसलिए बेटा वो आपको हैरान परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है. नाउ कैन यू सी, this nerve is running lateral to the brachial artery, then coming medially, then reaching in the cubital fossa. I told you that there is the relation of the M, then B, and also here will be the R radial nerve. Okay, what I want to tell you, this is indicating same thing. इसमें complete नहीं बना हुआ है, लेकिन हम इसको show कर रहे हैं M, B, and then B, and here is the position of the radial nerve. What, sir? It is the our RMBBR. Okay sir, simple, याद हो जाता है. Now look here, it is reaching into the what? It is reaching into the our forearm. बहुत बढ़िया सिंधु सागर, you are right. विश्वास डी, you are right. None is the answer. Okay, now it is reaching into the forearm. In the forearm, can you see it is running? Okay sir, and it is piercing. Yes sir, it is piercing in between. It is running in between the two heads of the pronator teres. Yes, एंड एट दैट टाइम इट इज गिविंग द ब्रांच टू द प्रोनेटर टेरिस ऑल्सो. क्यों? जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है. सर, दिस नर्व इज सप्लाइंग द प्रोनेटर टेरिस बिकॉज इट इज पियर्सिंग द प्रोनेटर टेरिस. इसकी नदी प्रोनेटर टेरिस से होकर के जा रही, तो डेफिनेटली प्रोनेटर टेरिस किससे सप्लाई होगी? मीडियन नर्व से.
MCQ. Now look, if there is the compression of the median nerve in between the two heads of the pronator teres, then it is known as pronator, yes, teres syndrome. तो एक और मैंने क्लिनिकल फिर से रिवाइज किया आप लोगों के लिए. Now this nerve is running and it is giving one superficial branch, and this is your, yes, डीप ब्रांच. बेटा याद करो, पुरानी क्लासेस में मैंने बता दिया है, दिस डीप ब्रांच इज रनिंग in front of the interosseous membrane. So now there is our need of the three-dimensional way. So can you see this beautiful three-dimensional anatomy? The Tony Stark, the Jarvis, the Iron Man anatomy. Sir, I want to tell you that here is the our upper limb part. Okay, sir. In this upper limb part, there are the network of the nerve. Yes, this network of the nerve is known as what? Sir, it is known as the brachial plexus. So here, can you observe there is the our nerve? Which nerve, beta? Sir, the median nerve. Okay. Can you see the median nerve is having the lateral root, the median nerve is having the medial root, and it is continuing as the median nerve. Yes, this is the median nerve in the axilla. Now can you see this median nerve, three-dimensional anatomy, beta? Yes, for all of you, this is a three-dimensional anatomy. This is running in the our arm. Okay, sir. It is reaching to the our, yes, remember, it is reaching to the supracondylar area, and then here is a cubital fossa. I am showing you the prototeres also, but right now can you see this is running in the our midline part of the forearm. Embryologically जब डेवलपमेंट होता है, एट दैट टाइम दिस मीडियन नर्व इज रनिंग एट द मिड ऑफ द फोरआर्म, इसलिए इसका मीडियन नर्व नाम है. मीडियल नहीं कहना, ये मीडियन नाम से जाना जाता है. यस, थैंक यू खान मोटिवेशनल, थैंक यू बेटा फॉर सेइंग सो ब्यूटीफुल वर्ड्स. खान मोटिवेशनल इज सेइंग किंग ऑफ एनाटॉमी. बेटा याद रखना, हर कोई यहाँ पर किंग है, हर कोई यहाँ पर बेस्ट है. आप भी बेस्ट हो, मैं भी बेस्ट हूँ, हर कोई यहाँ पर बेस्ट है. बस हमको एक डेडिकेशन चाहिए. ओके, और भी एनाटॉमी के टीचर हैं वो भी बेस्ट हैं, और भी एनाटॉमी के स्टूडेंट हैं वो भी बेस्ट हैं. बस एक रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है, और जब वो रेजोनेंस होता है तो बेटा मेरे लिए आप बेस्ट हो जाते हो, आपके लिए मैं बेस्ट हो जाता हूँ, किसी और के लिए कोई और टीचर बेस्ट हो जाता है, और उस टीचर के लिए वो स्टूडेंट बेस्ट हो जाते हैं. तो बस मिल करके पढ़ना है, हंसते हुए पढ़ना है, मिल करके इंजॉय करते हुए पढ़ना है. टेंशन में रहने का कोई मतलब नहीं. ओके, तो इसलिए बेटा याद रखना, यस, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है. जब हम नजरिया चेंज करते हैं तो बेटा गम की चीजें भी हमको खुशनुमा लगने लग जाती है. ओके, तो सिर्फ हमको एनाटॉमी को नजरिया चेंज करना है, ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. ओके सर, मीडियन नर्व इज गोइंग टू द अवर, यस, हैंड पोर्शन. सो कैन यू सी द कार्पल बोन? शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर. Yes, sir. So this nerve is reaching over the our carpal area, and now it is giving the branches. Can you see? Yes, yes, yes. It is giving the branches. It is giving the mini branches. Beautifully, you can see. It will give the muscles, muscular branches, but it will supply to the skin, cutaneous branches. अब बेटा ये ब्रांच दे रहा है, इसने अंगूठे को दिया, इसने इंडेक्स फिंगर को दिया, लैटरल साइड से भी दिया, मीडियल साइड से भी दिया. इसने मिडिल फिंगर को भी सेंसरी ब्रांचेस दी, डर्माटोम या क्यूटेस ब्रांचेस दी, लैटरल साइड से भी दी और मीडियल साइड से भी दी. और इसने हमारे लिटिल रिंग फिंगर के सिर्फ लैटरल साइड को दिया, मीडियल साइड को नहीं दिया, because here there is the nerve supply by the ulnar nerve. Yes, there are the many English students are also, I am repeating again, the median nerve is supplying on the thumb side, index finger, middle finger, and the ring finger lateral side. So the median nerve is supplying the 1, 2, 3.5 lateral 3.5 of the skin at the hand. It is very, very, very important, beta. Okay, getting the point? Yes, yes. Thank you, Sindhu Sagar. Thank you for your all the kind of the words. Now I am going to tell you the muscular portion also. Sir, these are the different muscles. I am removing them. Can you see? This is our muscle. Which muscle, beta? Sir, here is our pronator teres.
I want to show you the pronator teres syndrome situation. Don't focus over here and there muscle. Just enjoy the three-dimensional anatomy, beta. Can you see? This is the pronator teres. Yes, sir. Beautifully, beautifully, beautifully. You can see this nerve. Yes, yes, yes. Just to forget this, all the different other nerves. Just dissect everything and observe this particular nerve. Yes, sir. Can you observe it? This is the median nerve, and this median nerve is piercing this muscle. Getting the point? Yes. This is the pronator teres. It is having the two head. It is having the humeral head. It is having the ulnar head. Yes, sir. It is having the two head. Yes, humeral and ulnar. Okay. The median nerve is piercing this our pronator teres muscle, and actually ये बेटा थ्री डायमेंशनली ओरिएंटेड है लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं बना है. Actually that median nerve is coming from this area, the gap between the superficial head and the deep head. तो बेटा यहाँ से वो नर्व आती है और वो फोर आर्म में चली जाती है. Getting the point? Okay, fine. So the compression of the median nerve in between these two heads of the pronator teres is known as pronator teres syndrome. Agree? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. Now can you see this nerve is running here? Yes, sir. And it is reaching. Yes, it is dividing into the different branches. But focus here. There is the one modification of the deep fascia. Focus over this part. Can you see? That median nerve, this is the median nerve, it is passing below the modification of the deep fascia. बेटा ध्यान से देखो, this is the deep fascia modification which is over the our carpal bone. She looks too pretty, try to catch her. Means yes, हम पहले रिवाइज कर चुके हैं. इसके बाद डोनेट ट्राइकोटल पिसिफॉर्म ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट हैमेट. इसके ऊपर आपको एक डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन नजर आ रहा है. दिस डीप फेशिया मॉडिफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल, यस सर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग द फ्लेक्सर टेंडन. ये देखो बेटा, ये फ्लेक्सर टेंडन है. दिस ऑल द फ्लेक्सर टेंडन दे आर रिटेन्ड in position by this modification of the deep fascia. That's why this structure is known as flexor reticula. Flexor reticula. Yes, मिर्जा गालिब कहते हैं सारे राज नाम में दफन रहते हैं. इसलिए बेटा नाम को तोड़ो और सोचो. याद रखो बेटा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. याद रखो बच्चों कि आपको अभी लाइफ में बहुत आगे जाना है. चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है हमारे हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड में. एंजॉय करो इस सेशन को. याद रखो कि अगर आपको दूर तक जाना है तो प्रॉपर एक एक चीज को समझो, एक एक चीज का आप ओरिएंटेशन बनाओ, आप भूलोगे नहीं. Yes, sir. What I want to tell you, there is the flexor reticula. Just below this flexor reticula, can you see there is the gap? Yes, sir. She looks too pretty, try to catch her. Below it, there is the carpal area. Yes, this is the carpal area. And here is the beautiful, beautiful anatomy. Can you see? Sir, this is the tunnel over the carpal bone. ये क्या है? Sir, these all are the carpal bone. And this is the flexor reticula. So this is the tunnel. ये एक सुरंग है. किसके नीचे? फ्लेक्सर रेटिनाकुला के नीचे. इट इज जस्ट अबाउट द आवर कार्पल बोन. सो दिस गैप बिलो दिस फ्लेक्सर रेटिनाकुला इज नोन एज द कार्पल टनल. वेरी इंपॉर्टेंट. यस, whenever there is the inflammation, whenever there is a swelling, there is the compression of the median nerve. median nerve इसके नीचे से जा रही थी ना. compression of the median nerve below the flexor reticula. this is known as carpal tunnel syndrome. नाम को तोड़ो, सोचो. This is the our carpal area. Yes sir, ये carpal area है. There is the tunnel. Yes, due to the compression of the median nerve, there are the group of the symptom. Group of symptom को क्या कहते हैं? Sir, syndrome कहते हैं. So this is the carpal tunnel syndrome. Very easy. Getting the point बेटा everyone? Fine. चलो समझ में आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. Now try to understand further. Yes sir.
हमने इसके कोर्स को 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन से भी देखा सर. इट इज रीचिंग इनटू द अवर व्हाट सर, इट इज रीचिंग टू द अवर फोरआर्म पार्ट, बट here is giving one deep branch sir. This is the our deep branch of the median nerve. Look here, what I want to tell you. Look here sir, there is the our, yes, all the things, all the muscles, nerves, veins in this image. I'm cutting this all the muscle, and now I'm going to show you one very very beautiful fact. Yes sir, there is the our interosseous membrane sir, there is the our interosseous membrane. Yes, here is the radius, preaxial bone of the forearm, MCQ. This is the ulna, postaxial bone of the forearm. Yes, in between the bone there is a membrane, in between the bone, that's why it is known as interosseous membrane. अभी इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है. यस सर, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल मैच. इंटरनेशनल, इन बिटवीन द नेशन. इन द सिमिलर वे, interosseous membrane, the nerve which is running in front of the interosseous membrane, known as anterior interosseous nerve. The nerve which is running behind the interosseous membrane, that is known as the posterior interosseous nerve. Getting the point, everybody? Okay, okay, yes, yes, thank you Dr. Alhadatta. So Alhadatta is from the Pakistan, lovely country. Remember beta, right now our anatomy classes, the students are joining from the Nepal, Bangladesh, as well as the Pakistan, Russia, Kazakhstan, and then in our previous session the student from the Siberia and the Switzerland, they also came. So I am really really thankful to all of you and the God, to the Almighty, because due to support from all of you we are learning together. और बेटा हम अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं. याद रखना, कला, संस्कृति और ज्ञान, यस, द आर्ट, द कल्चर एंड द नॉलेज, दे आर हैविंग नो लिमिट. ये बेटा सरहदों के पार जाती है. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. नाउ we are going to look for the our next thing, the nerve which is behind the interosseous membrane, that is known as posterior interosseous nerve. Agree? Yes, yes, yes. Medbix is from the Uzbekistan, so I want to request to the Alhaditta from Pakistan and Medbix from the Uzbekistan, but please share this link to all your friends, क्योंकि ये totally free session है. मिल करके एंजॉय करते हैं, एनाटॉमी को पढ़ते हैं और टेंशन को हम दूर करते हैं. बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चना खाने का, मस्त होकर पढ़ने का. ओके, चलो आगे बढ़ते बेटा. ओके सर, सो दीज आर दवर ब्यूटीफुल 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन. मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाह रहा था सर, देयर इज दवर एंट्री इंट्रोशियस नर्व सर, देयर इज दवर nerve, anterior introitious nerve and posterior introitious nerve. Yes, what are the MCQs? Remember, this is the deep branch of what? Median nerve, and this posterior introitious nerve is nothing, it is the deep branch of what sir? Radial nerve. MCQ, MCQ, 2 MCQ more. Agree everyone? सबको समझ में आ रहा है बेटा? Fine. Okay sir. So now try to understand. This deep branch will supply the deep muscles of the forearm. तो बेटा deep muscle कौन कौन से हैं? Sir, the deep muscles are flexor pollicis longus. Yes. Flexor digitum profundus and the pronator quadratus. याद आया? हम पढ़ चुके हैं बेटा. The 3 deep muscles of the anterior compartment of the forearm फ्लेक्शन करेगी किसका? थंब का, अंगूठे का, दैट्स वाई पॉलिसिस. और ये मसल लंबी थी, दैट्स वाई लॉन्गस. दिस इज द डीप मसल. इसी तरीके से फ्लेक्सर फ्लेक्शन करेगी किसका? डिजिट्स का, एंड इट इज डीप, दैट्स वाई प्रोफंडस. यस, the medial half was supplied by ulnar nerve, but the lateral half is supplied by the deep branch of the anterior interosseous nerve. Okay, and in the similar way there is one muscle, what? A pronator quadratus. Yes, so these deep muscles are supplied by deep branch of median nerve, which is also known as anterior interosseous nerve. Agree? तो बेटा समझना. अब मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछता हूं ना. क्वेश्चन है, pronator quadratus supplied by MCQ.
Okay, first radial nerve, second post-introitious nerve, third median nerve, and one more anter-introitious nerve. So these are known as the controversial question. I told you by giving the example that who is wife of Salmon boy. Okay, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. Okay, क्वेश्चन आएगा who is wife of सलमान खान. चार ऑप्शन रहेंगे. Okay, बट वहां पर नन नहीं रहेगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं रहेगा. तो आपको सिंगल बेस्ट आंसर ऑप्ट करना है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर आंसर? प्लीज कमेंट व्हाट इज योर आंसर. प्लीज कमेंट व्हाट इज योर आंसर. सर, प्रोनेटर क्वाड्रेटस इज सप्लाइड बाय, जो बच्चा पढ़ा है तो वो क्या बोलेगा? सर, द नर्व ऑफ द एंट्री कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, मीडियन नर्व. सो मीडियन नर्व इज आंसर. ओके सर, मीडियन नर्व. लेकिन जिस बच्चे ने और डीप में स्टडी की तो उसको पता है कि सर मीडियन नर्व था. It was divided into the deep branch and the our superficial branch. This deep branch was supplying the flexor pollicis longus. Yes, flexor distal profundus, the lateral half, and the our pronator quadratus. So two answers. Median nerve is also correct. Anterine-trochleus nerve is also correct. The median nerve is also correct. Anterine-trochleus nerve is also correct. But in exam instruction, already it is given. Which is your best answer? Please opt them. So can you tell me which will be your best answer? Tell me which will be your best answer. Okay? Yes. Remember, the more close answer, more precise answer, the एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इज बेस्ट आंसर. अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया तब आप मीडियन नर्व करेंगे. यस, द डी इज बेटर आंसर देन सी. बोथ आर करेक्ट. But if you have to opt one single best answer, then entry introitious nerve will be best. ये समझ में आया बेटा सब लोगों को? So in such kind of the way they are asking the controversial question. Okay, who is wife of Salman boy, Salman Khan? Option will be the Aishwarya Rai. Yes, Katrina Kaif. There will be the Jareen Khan, Lulia, and also there will be the our option like Jacqueline Fernandez. ओके, तो जिसने ऐश्वर्या राय को मार्क कर दिया तो बेटा याद रखना बच्चन फैमिली विल नॉट लीव. ओके, वो तुम्हारा मर्डर कर देगी. सो यू कैन नॉट ऑप्ट द ऐश्वर्या राय. बहुत पुरानी बात हो गई. दिस इज नॉट द अपडेट. यस, देन यू कैन मार्क द कैटरीना कैफ. बट नाउ द कैटरीना कैफ मैरिड टू द आवर यस हाउस द जोश. तो याद रखना विकी कौशल सर जिंदा नहीं छोड़ेंगे. यस, इफ यू विल मार्क द कैटरीना कैफ in that situation, what will happen? House the Josh will get down. Okay, चांद सितारे वो बाद में तोड़ लाएगा, पहले तुम्हारा सिर फोड़ लाएगा. सो यू कैन नॉट मार्क द कैटरीना कैफ. यस, यू कैन मार्क द जरीन खान एंड द लूलिया. पहले बेटा न्यूज में ये अपडेट आई थी, लूलिया आंसर हो सकता है. बट मैं दिल्ली में क्लास ले रहा था आज से कुछ सालों पहले, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला नन नहीं दिया है तो आप नन को मार्क नहीं कर सकते. अगर ऑल ऑफ द एबव दिया तो आप ऑल ऑफ द एबव को मार्क कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं दिया है. तो एक बच्चे ने जोर से चिल्लाया, क्या? फार्म हाउस. बस बेटा यही अपडेट चाहिए, ऐसा ही अपडेट चाहिए जो न्यूज में छपा है इन द सिमिलर वे इन योर यस मेडिकल फील्ड. जो बुक्स में है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में है, ग्रेज एनाटॉमी में जो चीजें हैं उन चीजों का अपडेट चाहिए. तो जिस तरीके से वो बच्चा पूरी तरीके से अपडेटेड था फार्म हाउस इवेंट के बारे में और उसने जैकलिन फर्नांडिस को मार्क किया, उसी तरीके से बेटा आपको पता होना चाहिए कि इट इज गिविंग द ब्रांच anterine-trochleus nerve and this anterine-trochleus nerve is supplying the our pronator quadratus muscle. So the anterine-trochleus nerve will be the best answer. अगर ये नहीं दिया है तब बेटा आप किसको मार्क करेंगे? मीडियन नर्व को. ये समझ में आया क्या सब लोगों को? फाइन. ओके, yes yes yes. So now we are going to move for the next. Okay sir, this superficial, this deep branch is coming and it is ending at the wrist and inferior radio-ulnar joint. Khatam. What is happening to the superficial branch? This superficial branch is running in between the flexor digitorum superficialis. ये मसल हमने खत्म कर लिया. 3 डायमेंशनल मसल्स विद द स्पाइडरमैन वर्जन. प्लीज गो फॉर दैट वीडियो. और इसके साथ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस इनके बीच से रन कर रहा है. एंड हियर इट इज गिविंग द वन ब्रांच. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज पासिंग अबव द फ्लेक्सर रेटिनाक्युला. यस, ये हैंड में जा रहा है. इट इज पासिंग नॉट अबव. प्लीज इंप्रूव दिस इमेज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. गलतियां हो जाती बेटा. यस, रिमेंबर इट इज पासिंग बिलो
तो इस टेक्स्ट बुक में बेटा ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, आपको क्या याद रखना, इट इज पासिंग बिलो the flexor reticula. So if there is a damage compression, then carpal tunnel syndrome occurs. But there is the one branch which is running above the flexor reticula, और ये पाम के स्किन को सप्लाई करती है, पाम की स्किन को सप्लाई करती है बेटा, गेटिंग द पॉइंट. सो इट इज सप्लाइंग द आवर पामर स्किन पार्ट स्पेशली ओवर द थिनार एमिनेंस एरिया. तो यहां पर ये क्यूटेंस ब्रांच देती है. तो अगर मान लो यहां पर इंजरी होती है तो बेटा थिनार एमिनेंस के ऊपर का लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है. नाउ कैन यू सी इट इज रीचिंग इनटू द हैंड, इट इज डिवाइडिंग इनटू द आवर medial branch and the lateral branch. Okay sir, now can you see this lateral branch, it is giving one branch which is going opposite side. बेटा वो आगे जा रही थी फिर पलट के ऊपर चली गई. यस, तो जब कोई भी चीज पलट के जाती है उसको बोलते हैं रिकरेंट. यस, सो दिस इज द रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व. इट इज supplying the muscles of the thenar eminence, and I told you the way how you can remember. AFO is your mnemonic. A for abductor, ये थंब को क्या करती है, एबडक्ट करती है, एबडक्टर थंब को, इसलिए पॉलिसिस छोटी मसल है इसलिए ब्रीविस कहना. यस, अगली मसल कौन सी थी, थिनार मसल की, जो नदी जहां रहती है जहां बहती है उस एरिया को सप्लाई करती है. मीडियन नर्व की नदी यहां से बह रही है तो इधर जो भी मसल आ रहा है उसको यही सप्लाई कर रही है. अनदर मसल इज अवर फ्लेक्सर. यस सर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्शन. किसका फ्लेक्शन बेटा, थंब का, दैट्स व्हाई पॉलिसिस. इट इज अ स्मॉल मसल, दैट्स व्हाई यू विल से ब्रेविस. एग्री? यस. और उसके बाद हमने ओ देखा था, ओ से क्या था, ओपोनेंस पॉलिसिस. It is supplying all the thenar muscle except which muscle, except our adductor pollicis. Yes, except the adductor pollicis. This adductor pollicis was the, do you remember, I told you many times, graveyard of ulnar nerve. Yes sir, that's why this adductor pollicis is supplied by which nerve, ulnar nerve. Okay, we had seen this all the fact. While the medial branch, beta ye medial branch aa rahi hai, this medial branch is giving the nerve supply to the first lumbrical and second lumbrical, and it is giving the dermatome of the hand, the lateral 1 2 3 and half along with the बैक साइड नेल बेड. तो बेटा नेल बेड की कहानी मैं बाद में बताऊंगा. ये नर्व आते हैं और ऐसे घूम करके पीछे नाखून वाले एरिया को भी सप्लाई करते हैं, डॉर्सम में भी सप्लाई करते हैं. सो दिस आर द सेंसरी ब्रांचेस. एग्री? यस सिंधु सागर, यू आर राइट. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर. कैसे याद करना, फिर से रिवाइज करते हैं. फॉर्मेशन, ब्रेकियल प्लेक्सस, लैटरल रूट, मीडियल रूट. एग्री एवरीबॉडी? Okay sir, now it is running where sir, it is running at the our axilla. Okay sir, no branch. Then it is crossing the brachial artery from lateral to the medial side. Okay sir, then in the cubital fossa the relation is the MBBR. Okay sir, then it is piercing the protectoris muscle. Fine sir, then it is running here in the our forearm. It will supply all the superficial muscle. Yes, we know, except the flexor carpi ulnaris. So here pronator teres, the flexor carpi radialis, the palmaris longus, flexor digitorum superficialis, this all are supplied. बेटा नहीं याद करना, क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन वर्जन में हमने सारी चीजों को देख दिया है. What you have to remember, you have to just enumerate all the muscles. It is supplying all the muscles of the anterior compartment of the forearm except flexor carpi ulnaris. Remember, flexor carpi ulnaris is on the ulnar side, so it is supplied by ulnar nerve. Why? हिल्टन लॉ, जो नर्व जहां रहती है जहां बहती है उस एरिया को सप्लाई करती है. ओके सर, नाउ लुक हियर, द डीप ब्रांच, इट विल सप्लाई द डीप मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म. देन देयर इज this nerve is ending at the wrist and radioulnar joint. Okay sir, now this nerve is coming, it is running deep to the flexor retinaculum. Yes, it is reaching into the our carpal tunnel, then it is reaching into the hand. Before the flexor reticula, it is giving one palmar cutaneous branch which is supplying over the our thenar eminence skin. Now in the hand, it is dividing into the medial branch, lateral branch. The lateral branch is taking the recurrent course and it is supplying all the thenar muscle except what? Sir, except adductor pollicis. And here in the hand, the medial branch is supplying the first and second lumbrical. Also it is giving the cutaneous branches. इतना याद होता है क्या? ठीक है, चलो अब मैं आपको इसको चौथी बार पढ़ाने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू. चलो, we have to make easy for the exam preparation. Okay sir, so catch this point.
Yes. One more time, we are going to look for the median nerve. Sir, we are going to look for the median nerve. कैसे याद रखना है फॉर द फर्स्ट एमबीबीएस एग्जाम? सर फर्स्ट कैसे ये बना? देन इट इज रनिंग इनटू द व्हाट? axilla. After the axilla it is reaching into the arm. After the arm it is reaching into the our what? Cubital fossa. ये हेडिंग याद रखना, फिर सब याद आ जाएगा. And after the cubital fossa, yes sir, it is reaching into the our forearm. After the forearm it is running into the our hand. Yes, इतने हेडिंग में आपको याद रखना है. एग्री बेटा? फाइन. चलो तो स्टार्ट करते हैं. सर दिस मीडियन नर्व इट इज हैविंग द लैटरल रूट एंड इट इज हैविंग द मीडियल रूट. और इजी करने के लिए चलो मैं आप लोगों के लिए ये अपर लिम्ब बना देता हूं. सपोज दिस इज द नेक, दिस इज द शोल्डर एंड हियर इज द आर्म, दिस इज द एक्सिला पार्ट. ओके सर. सपोज दिस इज द फोर आर्म. Okay sir, suppose this is the lateral side, so here we are making the thumb. Here is the our index finger, middle finger, ring finger, and suppose this is the little finger. Diagrammatic presentation. Yes, this is the palmar side, so just I am making the nail and doing the nail polish only for the thumb lateral side. लेकिन बाकी का हम yes हम nails नहीं बना रहे हैं. These are the just skin crease. Okay, तो इससे समझ में आ जाता है you are looking from the front side. Agree? Now do you remember the brachial plexus? It is arising from the C5, C6, C7, C8, T1. These are at the neck part. Okay sir. C5, C6, C7, C8, T1. I am writing C5, C6, C7, C8, T1. So do you remember the C5, C6, C7? They are contributing for the lateral root. Sir, the C8 and T1, these are uniting and making the medial root. Agree beta? Fine. Getting the point? So you can mention here, sir, this is your lateral root of median nerve and here is our medial root of median nerve. These two nerves are uniting and these are making the what? Median nerve. Agree? Fine. यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? कोई डाउट? Okay. Yes. DRSS. Dr. S is saying pretty finger. Okay. शुक्रिया शुक्रिया. नेल पॉलिश को याद रखना, नेल्स को याद रखना, बिकॉज इन द कैडेवरिक इमेज इट विल हेल्प टू डिसाइड इट इज डॉर्सम और द पामर. अगर बेटा नाखून दिख गया मतलब डॉर्सम ऑफ द हैंड है, अगर नाखून नहीं दिख रहा है मतलब पामर साइड है. छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये एग्जाम क्रैक करने में, क्वेश्चन को समझने में बहुत मदद करती हैं. ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, आफ्टर दिस पॉइंट यू हैव टू यूनाइट देम. अब क्या कर देना बेटा, ये दोनों नर्व को ऐसे जोड़ देना, ऐसे जोड़ दो. ओके सर. अब ये क्या बन गया तो आपका मीडियन नर्व. यस सर, दिस इज अवर व्हाट सर, इट इज द मीडियन नर्व. ये देखो एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, फ्लो चार्ट भी बना रहे हैं. नाउ दिस मीडियन नर्व इज रनिंग 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 इन द आवर आर्म. कोई ब्रांच दिया क्या? नो सर. डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, यहाँ पर एक आर्टरी भी आप शो कर सकते हो. सर दिस इज द अवर विच आर्टरी? एक्सिलरी आर्टरी एंड द ब्रेकियल आर्टरी विच इज डिवाइडिंग इनटू द रेडियल एंड अल्नर आर्टरी. ओके, व्हाट आई वांट टू टेल यू, एट द कोरेकोब्रेकियलिस इंसर्शन. आराम से बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना पड़ता है. एट द कोरेकोब्रेकियलिस इंसर्शन इट इज क्रॉसिंग द ब्रेकियल आर्टरी फ्रॉम lateral to the medial side and then it is running for the cubital fossa. Okay, so here you must remember that sir, this nerve, median nerve is, yes, crossing brachial artery
lateral to medial side at coracobrachialis insertion. This is the very important fact, especially for the फर्स्ट MBBS स्टूडेंट्स. दिस इज द ओल्ड नीट पीजी क्वेश्चन. ये देखो बेटा, एक तरफ हम फ्लो चार्ट भी शो करते चले जा रहे हैं. यस सर, these are the highlighted point which you have to remember. Okay, now what is happening here? The median nerve reaching. अगला पॉइंट क्या? मीडियन नर्व, मोस्ट medial at cubital fossa. द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन MBBR, ये हम बार बार रिपीट कर चुके हैं. ओके सर, नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर सर, दिस मीडियन नर्व इज नाउ passing in between the two heads of the which muscle? आंसर इज योर यस प्रोनेटर टेरिस. तो बेटा ये लो, सिंपल सा, एक ऊपर बना दो हेड को और एक नीचे बना दो समझने के लिए, और इस नर्व को इसके बीच से निकाल दो ऐसे. समझ में आ रहा है बेटा? ओके, डायग्राम बनाना पड़ेगा. डायग्राम मीन्स एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स डायग्राम. और फर्स्ट MBBS में बेटा जब तक आप डायग्राम नहीं बनाते आपको नंबर नहीं मिलते. ओके, आपने सिर्फ डायग्राम बना दिया, थ्योरी ठीक से नहीं लिख पाए हो तो भी बहुत अच्छे नंबर. आपने खूब थ्योरी लिखा लेकिन डायग्राम नहीं बनाया तो बेटा नंबर कम मिलते हैं, क्योंकि डायग्राम से पता चल जाता है कि ये बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. Okay, so what you have to remember, some median nerve is most medial at the cubital fossa. The relation is the MBBR. One another important relation we had seen here. Agree? अब ये मीडियन नर्व रन कर रही है, कहाँ रन कर रही है? दिस इज रनिंग इन अवर मिड लाइन ऑफ द फोर आर्म. इसीलिए तो इसको मीडियन न कह रहे हैं, मीडियल नहीं कहना. यस सर, ये मीडियली रन नहीं कर रही है भाई. मीडियली अल्ना की तरफ तो अल्नर नर्व होती है. इट इज रनिंग एट द मिड लाइन पार्ट, दैट्स व्हाई मीडियन नर्व. It is supplying all the muscles of the our forearm. Yes, it is giving. अब बेटा ये रटना नहीं है ना, मैं जस्ट डॉटेड लाइन से बना दे रहा हूँ. It is giving the branch to the pronator teres. It is giving the branch to the flexor carpi radialis. Do you remember our three-dimensional Spiderman session? Yes, it is supplying the flexor digitorum superficialis. Yes, it is supplying to the our palmaris longus except flexor carpi ulnaris. Okay, sir. And there is the our deep branch. The deep branch is nothing sir, this is running in front of the interosseous membrane. तो चलो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं. मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बना देता हूं. yes sir, suppose this green color is the interosseous membrane. So this nerve is running, yes, above the interosseous membrane. So this is the anterior interosseous nerve. It is giving the branch to the deep muscles, means the flexor, thumb means pollicis, लंबी मसल थी longus, and it is giving the branch to the, yes, lateral half of the deep muscle, flexor digitorum profundus. याद करो बेटा हमारे पुराने वीडियोस को. and it is giving the deep branch to the pronator, yes, quadrangular muscle थी quadratus. खत्म. and it is ending at the our radio ulnar joint. खत्म, टाटा बाय बाय, गया. सिंपल. एग्री? फाइन. Okay sir, now try to catch this point. Sir, over the carpal area she looks too pretty. तो बेटा यहाँ पर कौन होता है? हमारा flexor reticula. Yes sir, there is the location of, sir, there is the location of the what? Flexor reticula. What I want to tell you, पहली चीज कि ये आपको बताना है, this is the our anterior interosseous nerve. Again mentioning, it is the deep branch of what? Median nerve. Agree? Yes sir. Important. It will supply deep muscles of the anterior compartment of the forearm. Okay sir. Now this nerve is running into our hand. It is giving one palmar cutaneous branch which is running superficially, and it is supplying the skin over the thinner eminence. Okay sir. And it is giving the deep branch which is passing below the flexor reticula. तो बेटा ये क्या चीज है sir? This is our flexor tendon retaining structure, that is our flexor retinaculum.
retinaculum. So what you have to remember, sir? Median nerve. Median nerve passes below flexor retinacula, and this below part is known as, yes, carpal tunnel. So if there is the compression, ये hashtag जो बता रहे हैं बेटा वो injury है. If there is a compression of the median nerve below the flexor retinacula, then it is known as carpal tunnel syndrome. MCQ beta, getting the point? Okay. Now try to catch this point. When it is reaching here, it is giving the different branches. Yes, recurrent branch, the muscular branches. I'm not making that all the things. Just itna yaad rakhna. It is supplying all the thin arm muscle. It is supplying the first and second lumbrical. Okay, and it is supplying the our skin of the forearm. तो बेटा हम हौच पौच नहीं कर रहे हैं. हैंड का मैं एक बार और रिवीजन उस इमेज से करवा दे रहा हूं. लैटरल 3.5 इतने को सप्लाई कर रहा है. ओके सर, इट इज गिविंग द ब्रांचेस. टू टाइप्स ऑफ ब्रांच. मोटर ब्रांच means muscular branch. What are the different motor branches? Yes, A, F, O, of O, and then first lumbrical and second lumbrical. Do you remember? हमने देखा abductor थम को एबडक्ट कर रही थी, पॉलिसिस थम था इसलिए पॉलिसिस, छोटी मसल दैट्स व्हाई ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस. देयर वाज आवर फर्स्ट लुम्ब्राइकल, सेकंड लुम्ब्राइकल, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, सिंपल. एंड इट इज सप्लाइंग द सेंसरी dermatome, sensory branches. Yes sir, sensory branches also it is giving. What are the different sensory branches? Remember, lateral 3.5 on palmar side, not the dorsum of the hand, palmar side, 1 2 3.5. Also at nail beds. तो बेटा ये ब्रांचेस जो है ऐसे 1 2 3 और हाफ में जाती, फिर पीछे पलट करके नेल बेड को भी सप्लाई करती है. सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इस तरीके से मीडियन नर्व की कहानी खत्म होती है. सो वी हैड क्रिएटेड वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू. यस, you can get these notes at the our beautiful amazing platform. Agree beta? So this is all. अगर मान लो मीडियन नर्व का हैंड का क्वेश्चन आ गया तो आपको इसको शो करना है. सी हियर, दिस नर्व इज डिवाइडिंग इनटू द टू, यस, medial and lateral. The lateral part, it is giving one branch, recurrent branch, which is giving the AFO, AFO muscle. And the medial branch, it is supplying the first lumbrical, second lumbrical, and it is also giving the sensory dermatome branches. खत्म बेटा. ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट द अवर मीडियन नर्व. अब इतना अगर समझ में आ गया तो कोई भी क्लिनिकल आप नहीं भूलोगे. सी हियर, वी आर गोइंग टू लुक द इंजुरी ऑफ द मीडियन नर्व. कई सारी चीजें हमने अभी से देख ली. सर, देयर इज अ चांसेस ऑफ द इंजुरी ऑफ द मीडियन नर्व एट द क्यूबाइटल फोसा. यस, एट द मिड ऑफ द फोरआर्म. ओके सर, just above the wrist part, suicidal cut injury. Okay, and sometimes there is the our carpal tunnel syndrome below the flexor retinaculum. तो ऐसे एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल और चार लेवल में इंजुरी होती है. ओके, सो catch this point one by one. Whenever there is the damage, in that situation these features are asked. So NEET PG NICT बहुत आसान लगेगा जब इतनी चीजें समझ में आ गई. Captain America was the bachelor in physiotherapy. This is our topic related with the orthopedics. Yes, fracture you will see in the radiological image, radio. You will see also in the medicine. Yes, सर्जरी. और बेटा मीडियन नर्व को कई बार हमको डिसेंसिटाइज करना पड़ता है सर्जरी के लिए. दैट इज अवर एनेस्थेशिया. एग्री? So we are going to look for the our median nerve injury. It will represent like the our carpal tunnel syndrome, then aphthous deformity, the pointing index, the Oshner clasp test we are going to learn, the Benedict hand, the Pope hand deformity, the Phalanx test, the pain test and the Tinel sign. We are going to look this all. याद रखेंगे निमोनिक क्या है. कैप्टन अमेरिका was bachelor in
फिजियोथेरेपी। कैप्टन अमेरिका जो थे वो एमबीबीएस नहीं कर पाए, तो उनको मजबूरी में एडमिशन नहीं मिलने के कारण एवेंजर की टीम ज्वाइन करनी पड़ी। सो इन दिस फनी वे यू कैन रिमेंबर, ओके, व्हाट आई वांट टू टेल यू फर्स्ट, द कार्पल टनल सिंड्रोम, एज आई हैड शोन ऑलरेडी विद द प्रॉपर 3 डायमेंशनल वे। ओके, तो बेटा अब हमारे क्लिनिकल चालू हो गए, ध्यान से सुनना, मजेदार तरीके से सुनना। सर, these are the our different structures, yes sir, this is the flexor retinaculum which is over the, she looks too pretty, yes, ये क्या है, इसके फॉर्ड लूनेट ट्राइक्वेटर पीसीफॉर्म, देन ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट हेमेट, तो इनके ऊपर मॉडिफिकेशन ऑफ द डीप फेशिया है, दिस इज रिटेनिंग द फ्लेक्सर टेंडन, दैट्स व्हाई इट इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुला, एंड जस्ट बिलो टू इट देयर इज द वन टनल, सो दिस इज द वर कार्पल एरिया टनल, कार्पल एरिया में एक सुरंग बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द कार्पल टनल, कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व बिलो दिस फ्लेक्सर रेटिनाकुला इज नोन एज द कार्पल टनल सिंड्रोम, एक लाइन में आपको याद रखना है, यस सर। नाउ इट इज कॉमन इन होम, तो बेटा जब आप मेडिसिन में जाओगे तो आप देखोगे इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, द ऑटोइम्यून डिसीजेस, whenever there is the autoimmune disease like the rheumatoid arthritis, SLE, this is the generalized body inflammation, so there is a swelling at this area, so in case of the rheumatoid arthritis, autoimmune diseases, यहाँ पर swelling हो जाती है and the median nerve is getting compression. Also the myxedema, yes, that is the our hypothyroidism, the physiology and the medicine integration, myxedema, there is a myxomatous degeneration, there is the accumulation of the water within the connective tissue, तो बेटा यहाँ पर हमारी स्वेलिंग हो जाती है, सो देयर इज अ कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व बिलो द फ्लेक्सर रेटिकुला। आल्सो द कंप्यूटर टाइपराइटर, बहुत लंबे समय से 10 साल से 20 साल से कंप्यूटर टाइपराइटिंग कर रहे हैं, सो देयर इज द रिपीटेड इंजरी ओवर दिस कार्पल टनल पार्ट, यस इट इज आल्सो लीडिंग टू द मीडियन नर्व कंप्रेशन, दिस इज द अवर व्हाट, carpal tunnel syndrome, agree beta? So what I want to tell you, this all the point, the patient will come what, sir, if there is a compression of the median nerve, patient will complain about the pain, yes, पैरास्थेशिया, अल्टरल सेंसेशन, पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे अंगूठे में, मेरे इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर के थंब साइड में कुछ चीटियां चल रही हैं, या कोई पिन चुभ रहा है, या दर्द हो रहा है, इस तरीके का कंप्लेन वो करेगा, लेकिन उस पेशेंट में इधर नॉर्मल रहेगा, बाय बिकॉज दिस इज द एरिया फॉर द अल्नर नर्व, इधर उसको सब चीजें नॉर्मल रहेगी, यस, सो दिस इज नथिंग, दिस इज द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व एट द आवर कार्पल टनल, यस, हो सकता है ऊपर भी कोई इंजुरी हुई हो तब भी सेम फीचर मिलेगा बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली मीडियन नर्व का ही तो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, सो दिस आर द सेंसरी फीचर, बट ऑल्सो देर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मसल्स, क्योंकि यही तो मसल्स को सप्लाई करते हैं, सो द एट्रोफी ऑफ द थिनार एमिनेंस विल ऑकर, एंड द एट्रोफी ऑफ द थिनार एमिनेंस इज नोन एज एप थंब डिफॉर्मिटी, यस, याद रखेंगे बच्चों, द मीडियन नर्व इज कमिंग एंड हियर इज द अल्नर नर्व, तो मीडियन नर्व क्या करता है, इट इज सप्लाइंग द थिनार एमिनेंस, ओके सर, so if there is a compression of the median nerve, so there is the atrophy of the thenar eminence, okay, so there is a flattening of the muscle, ये मसल जो है वो एट्रोफिड हो जाते हैं, हट्टे कट्टे मोटे ताजे नहीं रह पाते हैं, चपटे हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बंदर का हाथ है, एप का थंब है, सो दिस द एप थंब डिफॉर्मिटी, यस, इन कार्पल टनल सिंड्रोम यू कैन गेट द एट्रोफी ऑफ द मसल, क्योंकि मीडियन नर्व ही तो है जो यहाँ थिनार एमिनेंस को सप्लाई कर रही है, ओके, also this nerve is coming and it is supplying the our sweat gland, it is supplying the our blood vessels, yes, इसकी बेटा छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेस होती है जो ब्लड वेसल को सप्लाई करती है, बट इफ इट इज गेटिंग डैमेज देन नो प्रॉपर ब्लड सप्लाई हियर, और बेटा जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो यहाँ पर ट्रॉफिक चेंजेस मिलेंगे, स्किन जो रहती है वो सूखी सूखी हो जाती है, नेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, स्किन को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सो नेल्स क्रैकलिंग कैन बी सीन, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम। चलो इसका हम इलाज करते हैं, कोई भी बेटा कार्पल टनल सिंड्रोम या कोई भी टनल सिंड्रोम हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, यस, in biochemistry you all study that these our, yes, remember, ये जितने भी हमारे नर्व होते हैं उसके माइलिनेशन के लिए विटामिन B1, द विटामिन B2, B3, B6, B9, B12 दे आर रिस्पॉन्सिबल, इसलिए आप क्या करोगे, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दोगे, यस, न्यूरोबायोन का टेबलेट दोगे, ठीक हो गया, अच्छी बात, नहीं ठीक हुआ, दर्द हो रहा है तो बेटा पेन किलर दो, द
एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दो। इससे भी ठीक नहीं हुआ तो बेटा अब क्या करो, यस स्टेरॉयड दो, बिकॉज द स्टेरॉयड दे आर द आवर बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये हर दवाई की, हर बीमारी की दवाई होती है कौन, स्टेरॉयड। बट रिमेंबर, अगर इसके 100 यूज हैं तो इसके 100 साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए डायरेक्ट स्टेरॉयड को यूज नहीं करना। गांव में कुछ डॉक्टर होते हैं, आपने सुना होगा झोला छाप डॉक्टर, एक जनरल टर्म हम बोलते हैं, तो बेटा वो कुछ और नहीं करते, वो पूड़िया बना करके स्टेरॉयड दे देते हैं, हर बीमारी का इलाज करता है, लेकिन इसके 10 साल बाद 5 साल बाद उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं और फिर वो बहुत प्रॉब्लम करता है। लेकिन इससे भी अगर ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी करेंगे। यस, सी हियर, क्या सर्जरी हम करेंगे, अगर हम सभी जैकलिन आंटी के फैन हैं तो जैकलिन आंटी क्या कहती है, चिटिया कलाइयां, और वो कहती कि कलाई इधर है, और इसी कारण उनको कोई भी शॉपिंग नहीं ले जाता, उनको कोई भी पिक्चर नहीं ले जाता। आपने सुना है ना, चिटिया कलाइयां वे मंजावे तू मैनू शॉपिंग करा दे, मंजावे तू मैनू पिक्चर दिखा दे, लेकिन कोई उसको नहीं ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गलत बोल रही है, ये कलाई नहीं है। रिमेंबर बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन इन एग्जाम, दे विल आस्क वेयर इज योर रिस्ट, तो समझो अपने बॉडी में पढ़ो, सर दिस इज द रेडियस, सर हियर इज द अल्ना, जैकलिन आंटी इज सेइंग दिस इज द रिस्ट। बेटा रेडियस और अल्ना इसके ऊपर रिस्ट है, ये रिस्ट है नहीं। यस रिमेंबर, द रिस्ट इज अवर रेडियो कार्पल ज्वाइंट, तो बेटा ये रेडियस और कार्पल बोन के बीच में ये रिस्ट है, एंड द कार्पल टनल इज लोकेटेड अबव द कार्पल बोन। ओके, तो आप क्या करोगे, इफ देयर इज द compression of the median nerve, in that situation you have to cut this flexor retinaculum। अगर आप जैकलिन आंटी के फैन हो तो आप बोलोगे ये कलाई है, यहां पर हमारा फ्लेक्सर रेटिना है, यहां इंसिजन दे दोगे और खोजोगे मीडियन नर्व तू कहाँ है, मीडियन नर्व तू कहाँ है, मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर कंप्रेस है ही नहीं, वो तो यहाँ पर है। अब आप इंसिजन को यहां से बढ़ाते हुए यहां तक लाओगे। सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू द सर्जरी। यस, there is our, she looks too pretty, try to catch her। Okay, so the flexor retinaculum, it is attached on the lateral side, scaphoid and trapezium and medial side bones, and above it there is our flexor retinaculum। Okay sir, अगर हम जैकलिन आंटी के फैन हैं तो हम तो बोलेंगे कि ये कलाई है, इधर इंसिजन दे दिया, हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मिला ही नहीं, तो अब हम इंसिजन को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, यहां तक पहुंच गए, और फिर उसके बाद हमने इसको कट किया, इंसिजन बड़ा लंबा हो गया। अब ये पेशेंट जब होश में आएगा तो उसी हाथ से हमको एक झापड़ लगाएगा। Nobody likes the ugly scar. So if you want to become the best surgeon, the best orthopedician, you must know the anatomy। जब आपको पता है कि फ्लेक्सर रेटिनाकुला कार्पल बोन के ऊपर है, यस आपको बेटा वाइवा में पूछा जाएगा, पुट द टू हैंड्स ओवर द योर कार्पल बोन, पुट द टू हैंड्स ओवर द फ्लेक्सर रेटिनाकुला, तो बेटा याद रखना हाथ में आपका जहां थिनार और हाइपोथिनार में से यहां पर रखना है। फ्लेक्सर रेटिनाकुला इट इज नॉट लोकेटेड हियर। फर्स्ट एमबीबीएस के बच्चों ध्यान से सुन लो, एक्सटर्नल आते हैं दिल्ली से मुंबई से आपके कॉलेज में और बोलेंगे पुट द टू फिंगर ओवर द फ्लेक्सर रेटिनाकुला ओवर द रिस्ट, तो बच्चे क्या करते हैं, रेडियस और अल्ना के लोअर पार्ट के ऊपर रख देते हैं। दिस इज नॉट द फ्लेक्सर रेटिनाकुलर पोजीशन, इट इज लोकेटेड ओवर द, यस सर, बिलो द रेडियस। तो बेटा रेडियस को फील करो, स्टेलॉइड प्रोसेस को, यू कैन फील द एनाटॉमी इन योर ओन बॉडी। तो बेटा ये रेडियस फील हो रहा है, तो यहाँ पर शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, तो यहां पर आपको फिंगर रखनी है। दिस इज द लोकेशन ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुला ओवर द थिनार एंड हाइपोथिनार ओवर द कार्पल बोन, यहां नहीं रखना, ये गलत है। हियर इज द लोकेशन, यू कैन सी द इमेज, दिस इज द पार्ट, यू हैव टू गिव इंसिजन हियर। जितना छोटा इंसिजन आप देते हो, जितना कम स्कार पेशेंट को देते हो, तो बेटा वो पेशेंट आपसे उतना खुश रहेगा। नोबडी लाइक्स द अगली स्कार। Okay, so this is the beautiful integration। Yes Sindhu Sagar, this is the surgery integration। Okay, okay sir, so this is the permanent treatment। Now I told you the aphthum deformity, okay, CAP, P for, now I'm going to tell you the Phelan's test। See here, median nerve, sir, it is running into the our hand, it is giving the branch towards the thumb, towards the our index, our middle finger and ring finger। if the patient is having the carpal tunnel syndrome, yes carpal tunnel syndrome, तो बेटा इस पेशेंट में मीडियन नर्व ऑलरेडी कंप्रेस है। सो व्हेन यू विल आस्क द पेशेंट टू डू द एक्सेसिव फ्लेक्शन इन डाउन वे, ऐसा
उसको रिस्ट को फ्लेक्स करने के लिए बोलोगे. So in that situation there is a compression of the median nerve and patient will complain the increased pain along the lateral 3.5. तो बेटा उसका जो lateral 3.5 का जो दर्द है वो बढ़ जाएगा. Sir, this is the your what? Sir, it is the your positive Fallon test. So what you have to do, the way to remember, yes, ये है नमस्ते, ये है ऑपोजिट नमस्ते. सो आपको फॉल करना है हैंड को और कहना है. इस मंत्र का उच्चारण दिन में 3 बार करने से इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और क्वेश्चन गलत नहीं होते. व्हाट यू टू से, फॉल फॉल फॉल, फैलन फैलन फैलन. चलो एक बार और इस मंत्र का उच्चारण करते हैं. फॉल फॉल फॉल, फैलन फैलन फैलन. दिस इज द वे टू रिमेंबर. एग्री? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर. यस यस पीयूष नमस्ते. हेलो सर, नमस्ते फ्रॉम योर इंजीनियरिंग स्टूडेंट. तो बेटा यहाँ पर फिर से मैं सारे स्टूडेंट को थैंक्स बोलना चाहता हूँ. फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मेनी मेनी कंट्रीज स्टूडेंट्स आर कमिंग. और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट जो कि कॉमर्स के बच्चे हैं, जो कि इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इवन छोटे छोटे बच्चे स्पाइडरमैन का सेशन देखने के लिए भी बैठ जाते हैं. ओके, सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड अदर our science and the art branches who are watching this video. थैंक यू बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. फैमिली मेंबर भी, मम्मी पापा भाई बहन, वो भी ये वीडियो देखते हैं. स्पेशली स्पाइडरमैन सेशन को बच्चों ने खूब पसंद किया, तो उनको भी मेरा थैंक यू, मेरा प्रणाम. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर वन मोर टेस्ट, दैट इज अ टिनल साइन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगेन कार्पल टनल सिंड्रोम का पेशेंट है, उसमें मीडियन नर्व कंप्रेस है. अब उसमें हम क्या कर रहे हैं सर, the median nerve is supplying the lateral 3.5 of the finger. तो इस एरिया में आपको क्या करनी है, टैपिंग करनी है. व्हाट यू टू डू, टैपिंग टैपिंग टैपिंग. यस, when you are doing the tapping over the flexor retinaculum, there is an increased pain along the lateral 3.5. So this is your what, this is the Tinel sign. Sir, this is the Tinel sign. Getting the point? What you have to remember, simple way. फिर से इस मंत्र का उच्चारण दिन में 3 बार करने से बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत नहीं होता. व्हाट यू हैव टू से, टिनल टिनल टिनल, टैपिंग टैपिंग टैपिंग, फॉल फॉल फॉल, फैलन फैलन फैलन, टिनल टिनल टिनल, टैपिंग टैपिंग टैपिंग, फॉल फॉल फॉल, फैलन फैलन फैलन. बार बार मेरे साथ ये करो बेटा, ये आपका सर्जरी में काम आएगा, ये आपका ऑर्थो में काम आएगा, ये आपका एनेस्थेशिया में काम आएगा, ये आपका एनाटॉमी में तो काम आएगा ही आएगा. यस, कैसे याद रखेंगे, tapping tapping tapping, tinnel tinnel tinnel, both are starting from the T. What you have to remember beta, yes, fall fall fall, fallon fallon fallon, tinnel tinnel tinnel, tapping tapping tapping, fall fall fall, fallon fallon fallon. That is a simple way to remember. Both are related with the median nerve. Both tests are positive in case of the carpal tunnel syndrome. सबको समझ में आया बेटा? Yes सिंधु सागर, you are right. Fall fall fall, fallon fallon fallon. Now there is the our another thing, aphthum deformity I told you. Now we are going to talk about the Pope hand deformity. As you all know, in our yes Christian community, Lord यीशु मसीह, he is blessing in this way. Okay, तो बेटा ये पोजीशन होता है हाथ का, ये है ब्लेसिंग का वे. ओके, एक पोप थे बेनेडिक्ट नाम के, वो जब ब्लेसिंग देते थे इसी पोजीशन में देते थे, ऐसा हाथ का होता है. इन हिंदू कम्युनिटी ऐसा हम करते हैं, तथास्तु, और रेज निकलती है, पावर मिल जाती है. बट इन क्रिश्चियंस व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द ब्लेजिंग हैंड. ओके, सो व्हेन देयर इज अ मीडियन नर्व इंजुरी एट द मिड फोर आर्म, यहां पर इंजुरी हो गई, समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन देयर इज अ इंजुरी एट द आवर क्यूबाटल फोसा, ओके सर, मीडियन नर्व इंजर्ड, नाउ यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू फ्लेक्स द फिंगर. तो क्या वो फ्लेक्स कर पाएगा? नो सर, बिकॉज ऑल द फ्लेक्सर टेंडन दे आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व. तो पेशेंट तो फ्लेक्स नहीं कर पाया. बट डू यू रिमेंबर द हाइब्रिड मसल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस? सर, द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अल्नर साइड वाज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व. तो बेटा अल्नर नर्व को तो डैमेज नहीं हुआ है, तो अल्नर वाला जो फिंगर वो ऐसा मुड़ जाता है, लेकिन ये दो फिंगर नहीं मुड़ पाते, तो पेशेंट का हाथ ऐसा रह जाता है. ऑन द नेम ऑफ द पोप Benedict, this is known as the Pope hand deformity or Benediction hand deformity. So remember this one again. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना. I am coming close to the camera. See here, there is our median nerve. Yes sir, median nerve. If the median nerve is injured at the mid forearm, yes, at the cubital fossa. Okay sir. तो अब क्या हुआ? All the flexor tendon are getting paralyzed. Why? Because this flexor tendon are supplied by median nerve. Agree sir. But the ulnar side
of the flexor digitorum profundus, sir, it is supplied by the ulnar nerve. Okay, it is not injured. तो बेटा फ्लेक्सर डिग्रूम प्रोफंडस जो है वो ये दोनों को मोड़ देगा, ये दो फिंगर जो है वो स्ट्रेट रहेंगी. सिंपल. सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है. अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो वी हैड डिस्कस दिस ऑल द थिंग्स. कॉमन सेंस को बस आपको समझना है. ओके, यस यस, थैंक यू जीत. मालविया, इफ यू ऑल आर लाइकिंग, इफ यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज गिव मी एनी काइंड ऑफ द इमोजीज, क्योंकि इमोजीज वो चीज है जो हमारे ऑनलाइन सेशन के बैरियर को दूर करते हैं. इन इमोजीज के कारण बेटा क्या होता है, यस, मुझे लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आपको लगेगा कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं. आप जब कमेंट करते हैं, मैं आपका नाम लेता हूं, तो बेटा हमारी एक कनेक्टिविटी बनती है. सो दिस ऑल द कमेंट्स एंड द इमोजीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू. ओके, नाउ ट्राई टू कैच दिस पेन टेस्ट, द नीट पीजी क्वेश्चन. यू हैव टू पुट द पेन अबव, ऊपर रखो पेन को और पेशेंट को बोलो कि अंगूठे से पेन को छुए. ये पेन है, अब अंगूठे से पेन को छूना है. तो बेटा पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट विल डू एबडक्शन, पेशेंट विल डू एबडक्शन ऑफ द थंब. यस, पेशेंट इज डूइंग एबडक्शन ऑफ द थंब. एग्री बेटा, फाइन. यस यस, थैंक यू मेडबिक्स, थैंक यू सिंधु सागर. यस, अब बताओ बेटा ये एबडक्शन कौन करवाया थंब का, सर दिस एबडक्शन इज डन बाय एबडक्टर pollicis brevis, also you can say longus. Okay, can you tell me these muscles are supplied by which nerve? तो बेटा इधर से किसकी नदी आती है, सर मीडियन नर्व की. इधर से किसकी नदी आती है, सर अल्नर नर्व की. so definitely these are supplied by the median nerve. so this pain test is the test for which nerve? answer is the median nerve. the pain test is the test for which nerve? median nerve. अगर मान लो इस मीडियन नर्व में इंजुरी हो गई तो बेटा एबडक्शन नहीं हो पाएगा. सो इफ यू आर पुटिंग द पेन हियर एंड यू आर आस्किंग द पेशेंट टू टच द पेन और वो ऐसा नहीं कर पाया, एबडक्शन नहीं कर पाया, मींस व्हिच नर्व इज इंजर्ड? मीडियन नर्व इज इंजर्ड. एग्री एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है? चलो अगला एमसीक्यू हम देखते हैं, पॉइंटिंग इंडेक्स. ओके, सो रिमेंबर पॉइंटिंग इंडेक्स. यस, इफ देयर इज अ इंजुरी एट द मिड फोरआर्म देन व्हाट विल हैपन? सर इधर से तो कौन आ रहा है, इधर से आता है हमारा अल्नर नर्व. यस सर, अल्ना की तरफ से कौन आ रहा था, सर अल्नर नर्व. और ये फ्लेक्सर डिग्रूम प्रोफंडस को सप्लाई कर रहा था, तो ये फ्लेक्स होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर. ओके, एंड ऑल्सो देयर इज अवर मीडियन नर्व. फाइन. अब बेटा याद रखना, मिड फोर आर्म वाले लेवल पे, मीडियन नर्व जो है वो एक ब्रांच देती है जो कहाँ जाती है, हमारे इंडेक्स फिंगर को जाती है. So at the mid forearm, if there is an injury, this branch, the radial branch, yes, flexor carpi radialis is there, flexor digitorum superficialis is supplying this all the finger. So the radial part of the flexor digitorum superficialis that is especially damaged. लेकिन इस फिंगर को, क्योंकि बेटा इंजुरी यहां नहीं है ना, यहां पर इंजुरी होगी तो सारे फाइबर चले गए, बट इंजुरी इज एट द लोअर लेवल. ओके, इंजुरी इज एट द लोअर लेवल. समझो, अगर यहां इंजुरी हुई, ओके, तो बेटा ये भी गया और इसके साथ में यहां जो आपके इंडेक्स फिंगर रहते हैं ये फाइबर भी गए. लेकिन जब मिड फोर आर्म में इंजुरी, दिस इज योर मिड फोर आर्म and this is just diagrammatic presentation, this is your level of the cubital fossa. तो जब क्यूबाइटल फोसा में डैमेज हुआ था तो ये फिंगर और ये फिंगर दोनों के मीडियन नर्व के फाइबर चले गए थे, तो दोनों फिंगर मुड़ नहीं पा रहे थे, तो हाथ ऐसा रह गया था, दैट वाज द बेनेडिक्शन. बट एट द मिड फोर आर्म, यस, द पर्टिकुलर फाइबर विच आर सप्लाइंग टू द इंडेक्स फाइंगर दे आर डैमेज्ड. तो अब पेशेंट को बोलोगे तो ये दोनों उंगलियां मुड़ेंगी, ओके सर, बट द फाइबर विच आर सप्लाइंग टू द अवर, यस, मिडिल फिंगर, दे आर आल्सो गेटिंग टर्न, बट दिस पर्टिकुलर फिंगर, yes, it is getting damaged, its fibers are getting damaged, so patient cannot flex this index finger, so the index finger is pointing towards the doctor. also बेटा एक और चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, these flexor tendon they are covered within the synovial sheath. तो जब आप ना एक उंगली को मोड़ते हो तो दूसरी उंगली मुड़ जाती है, दूसरे को मोड़ते हो तो तीसरी उंगली मुड़ जाती है. तो बेटा यस, याद रखना, ड्यू टू आल्सो दिस साइनोवियल शीथ, व्हेन यू आर टर्निंग दिस फिंगर, द मिडिल फिंगर इज आल्सो गेटिंग टर्न,
ऑल्सो द नर्व फाइबर टू द मिड फिंगर दे आर नॉर्मल। तो एक फिंगर बस स्ट्रेट रहती है, किसकी तरफ पॉइंट करती है, डॉक्टर की तरफ, दैट इज योर पॉइंटिंग इंडेक्स। नाउ ट्राई टू कैच दिस अनदर पॉइंट। यस, ऑशनर क्लास्प टेस्ट, अलग अलग कंट्री, अलग अलग ऑथर है वही चीज, नाम दे देते हैं अलग अलग। यस, ऑशनर टोल्ड टू मेक द क्लास्प, ऐसे मुट्ठी बनाओ सब लोग और उंगलियों को मोड़ दो। ओके सर, फाइन। बट इफ देयर इज द इंजुरी ऑफ द मीडियन नर्व एट द मिड फोरआर्म, तो एक इंडेक्स फिंगर स्ट्रेट रह जाएगा। अगर मैं दूसरे हाथ को हटा दूं, ओके, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये पॉइंटिंग इंडेक्स तो हुआ, दिस इज अवर क्लास्प, and when I am removing the another hand, then there is our pointing index. Yes, there is a pointing index, there is our pointing index. Getting the point? Okay, yes, there is a pointing index. Fine. Okay, so these are the points which you have to remember. Okay, so now try to look for the next. सैलमॉन भोई, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सीबीआई एनाटॉमिक क्लासेस। इनके बिना तो हमारी क्लासेस हो ही नहीं सकती। तो आप देखते हैं कि रेडी मूवी में उन्होंने ओके साइन के बारे में बताया है, वो बहुत टैलेंटेड हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हर क्लास में, हर अपनी मूवी में एनाटॉमी जरूर पढ़ाते हैं। तो ये क्या है, यस, ये ओके साइन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू टीच यू द ओके साइन। MCQ आता है, दिस ओके साइन इज फाउंड इन केस ऑफ द एंट्री इंट्रोशियस नर्व इंजुरी। दिस इज योर, यस, एंट्री इंट्रोशियस नर्व सिंड्रोम। लुक हियर, नॉर्मली हम ओके कैसे बनाते हैं, ऐसे। यस सर, वी आर मेकिंग द ओके इन दिस वे, ऐसा ऐसा ओके बनाते हैं। फाइन। जब आप ओके बनाते हो तो क्या होता है, देयर इज अ फ्लेक्शन ऑफ द थंब। ये देखो, ये मुड़ रहा है, डिक्रीज इन द एंगल इज नोन एज द फ्लेक्शन। यस सर, देयर इज अ डिक्रीज इन द एंगल ऑफ द आवर इंडेक्स, सो दिस इज द आवर फ्लेक्शन। यस, बताओ बेटा, थंब का फ्लेक्शन कौन करता है, मीडियन नर्व। यस, इंडेक्स फिंगर का फ्लेक्शन कौन करता है, मीडियन नर्व। बेटर टू से द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। प्रोफंडस डिस्टल फैलेंजेस को भी मोड़ते हैं, डिस्टल फैलेंजेस को। तो ये मुड़ा और ये मुड़ा और इस तरीके से ओके बन गया। बट इफ देयर इज द डैमेज टू द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, तो बेटा ये डिस्टल फैलेंजेस जो है वो फ्लेक्स नहीं हो पाते, तो पेशेंट फ्लेक्शन तो करता है लेकिन वो ऐसा हो जाता है। फाइन। सो इफ द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इज डैमेज्ड, there is a paralysis of the flexor digitorum profundus. Okay, so patient cannot flex the thumb. Yes, thumb is flexed by the flexor pollicis longus, which is supplied by the anterior introitious nerve. तो बेटा ये भी फ्लेक्स नहीं हुआ, ये भी फ्लेक्स नहीं हुआ, but here flexion is possible. Why? Because the flexor digitorum superficialis is normal. Okay, तो ये उंगलियां ऐसे हो गई. So this is your, yes, okay sign. It is found in case of the anterior introitious nerve syndrome. Again, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, प्लीज गो फॉर द अवर स्पाइडरमैन वर्जन। यस, वहां पर मैंने आपको एक एक मसल को दिखाया था। अगेन आई वांट टू शो यू, सर, दिस इज अवर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। प्रोफंडम इज डीप, इट इज रीचिंग अप टू द टर्मिनल फैलेंजेस। तो बेटा यहाँ पर फ्लेक्शन कौन करता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इट्स लैटरल हाफ, फर्स्ट एंड सेकंड टेंडन, दे आर सप्लाइड बाय द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। द मीडियल पार्ट दे आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। ओके सर, तो बेटा अगर एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व गया तो यहां पर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। यस, तो उंगलियां ऐसे हो जा रही है। एंड आई एम अगेन शोइंग यू द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। कैन यू सी दिस वन? This is the superficial muscle, flexor digitorum superficialis. It is not reaching the beautiful three-dimensional anatomy. Yes, so elegant, so beautiful, just looking like a bob. बहुत प्यारा concept है बेटा, ये बहुत use होता है। Sir, this is a flexor digitorum superficialis which is reaching to the our middle phalanges. Yes, it is not reaching to the distal phalanges part. Getting the point? So it is reaching to the middle phalanges. Okay, so it can flex here, लेकिन बेटा डिस्टल पार्ट फ्लेक्स नहीं हो पाएगा। डिस्टल पार्ट को अगर फ्लेक्स करना है तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व भी करेगी। ओके, फाइन। सो द पेशेंट इज डूइंग दिस position of the finger. Hope you all are getting the point. Okay, so now what I want to tell you, that is our anterior introitious nerve syndrome. अगर कोई प्रॉब्लम होगा बेटा, नहीं समझ में आ रहा, फिर से पूछना, फिर से बताऊंगा। समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ओके, नाउ कैन यू टेल मी, दिस इज द नीट पीजी 2021 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नर्व इन्वॉल्व्ड इन द टेस्ट। Yes, this was the test which had been asked. Answer is the definitely median nerve. This is the पेन टेस्ट। इसी तरीके से बेटा एक टेस्ट पूछा गया था, डरकन टेस्ट। डरकन टेस्ट ये ऑर्थो का क्वेश्चन था। इट इज आल्सो द टेस्ट फॉर द मीडियन नर्व। यस, ओनली कंप्रेशन ओवर द फ्लेक्सर टेनिकुला, नॉट टैपिंग। टिनल टिनल टिनल, टैपिंग टैपिंग टैपिंग, that was a tinel test.
but in the Durkheim test we are compressing over the flexor reticula. Okay, now look, the revision capsule, remember the median nerve, it is supplying the flexor muscles. Flexor muscles, they are causing the flexion, they are causing the flexion, and when these are causing the flexion, so they are helping in elevation of the heavy weight, they are helping in pushing, digging, गड्ढा खोदना है तो फ्लेक्शन हम करते हैं, हैवी वेट उठाना है तो फ्लेक्शन हम करते हैं। कौन ये काम करता है? गड्ढा खोदना, डिगिंग, पिटिंग, हैवी वेट उठाना, ये लेबर करता है। दैट्स व्हाई विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल एक्टिविटी? फ्लेक्सर टेंडन मीन्स median nerve. All the flexor muscles, they are supplied by the median nerve, except medial half of the flexor tendon profundus and flexor carpi ulnaris. That's why median nerve is commanding this all the flexor tendon labor muscles. म्यूजिशियन नर्व आने वाली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा बेटा। यस, फाइन मूवमेंट इज डन बाय द अल्नर नर्व, म्यूजिक मूवमेंट इज डन बाय द अल्नर नर्व। आई ऑफ द हैंड हमने देखा कि डर्माटोम ऑफ द स्किन, यस द डर्माटोम ऑफ द स्किन इज सप्लाइड बाय व्हाट सर? द डर्माटोम ऑफ द हैंड, मैक्सिमम एरिया इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। तो आई ऑफ द हैंड किसको बोलते हैं? मीडियन नर्व को बोलते हैं। बेटा याद रखना, अगर हम आंखें बंद कर लें या कोई अंधा आदमी है तो वो छू करके चीजों को बता सकता है। कौन सी नर्व मदद कर रही है? द मैक्सिमम 1, 2, 3.5 एरिया इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, सो मीडियन नर्व इज हेल्पिंग। ओके, इन द सिमिलर वे आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा बेटा, बुक टेस्ट, कार्ड टेस्ट, इगावा टेस्ट, फ्रॉम एंड साइन, दिस ऑल आर रिलेटेड विद द अल्नर नर्व। यस, टिनेल साइन, पॉइंटिंग इंडेक्स, ओके साइन एंड बेनेडिक्ट हैंड, दिस ऑल आर रिलेटेड विद द मीडियन नर्व। ओके साइन और अच्छे से कहोगे तो एंट्री इंट्रोशियस नर्व सिंड्रोम। ओके, तो ये आपके एमसीक्यूज हैं जो अभी हमने इस सेशन में देख लिए। तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा बेटा वो अल्नर नर्व का रहेगा। सो एट द लास्ट फ्यू मोटिवेटिंग लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू, डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड टुडे। अगर कोई कहता है कि आज दुनिया तबाह हो रही है तो बेटा उसको बोल दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी टुमारो इन द ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो रिमेंबर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको मेहनत करना है तो करना है, करना है तो करना है, लड़ना है तो लड़ना है, बढ़ना है तो बढ़ना है, और मरना है तो मरना है। बिल्कुल हम अपने लक्ष्य को पा करके ही रहेंगे। फिर से एट द लास्ट फ्यू ब्यूटीफुल लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तुम्हारे सीने में नहीं तो हमारे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो नाउ प्लीज आस्क इफ एनी डाउट इज देयर। Yes, beta, please ask if any doubt. Hope you all enjoyed the session. Yes, Jeet Malvi, Sindhu Sagar, KS648 is here. तो चलो दिल की बातें शुरू करते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल पूछो, बिंदास पूछो। Okay, please ask if any doubt. Scalp 5 blood vessels present in which of the 5 layers of the scalp? बेटा सिंधु सागर, these are the 5 blood vessels, these are cutaneous। तो बेटा ये स्किन के जस्ट नीचे होते हैं सुपरफिशियल फेशिया में, मींस यू कैन से कनेक्टिव टिश्यू लेयर, सेकंड लेयर ना, सेकंड लेयर। आर्टरीज, ओके, arteries are present in the second layer, that supratrochlear, supraorbitals, the our superficial temporal artery, then posterior auricular, and then our occipital arteries, these are present in the second layer। okay, yes, cortex user, welcome। scalp हम पढ़ेंगे बेटा, magic of 5। in the scalp we will see the 5 layers of the scalp, we will see the 5 arteries of the scalp, we will see the 5 veins of the scalp, we will see 5 nerves in front of the ear, we will see the 5 nerves behind the ear, and then we will see the 5 clinical point। खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। बहुत मजा आता है इन सारी चीजों को पढ़ने में। ओके, प्लीज मेक योर ग्रुप, प्लीज इन्फॉर्म योर ऑल द फ्रेंड्स। बच्चे कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो बेटा खूब मजा आता है इन सारी चीजों को पढ़ने में। ओके, चलो स्कैल्प का हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो ये पांच आर्टरी कौन कौन सी, 5 लेयर कौन कौन से हैं? SCALP, S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपोनेसिस लेयर, L फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, एंड P फॉर पेरिटोनियम। खत्म, 5 लेयर हो गए।
पांच आर्टरी कौन कौन सी, ऐसे याद करो, यस देयर इज अ सुप्राट्रॉक्लियर, देयर इज अ सुप्राऑर्बिटल, देयर इज अ सुपरफिशियल टेम्पोरल, देयर इज अ पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड देयर इज अ ऑक्सीपिटल आर्टरी। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। पांच आर्टरी, वैसे ही पांच वेन का नाम आपको याद करना है। 5 nerves in front of the ear where the 4 nerves are motor and yes 4 nerves are sensory and 1 nerve is motor. Okay, तो पांच नर्व कौन कौन से, सेम, supratrochlear, supraorbital, there is a zygomaticotemporal, there is the our auriculotemporal, these are the 4 sensory nerve. एक मोटर होता है कौन सर, facial nerve is the motor nerve, so the temporal branch of the facial nerve is the motor in front of the ear. behind the ear की अगर आप बात करेंगे, again 4 sensory and 1 motor, तो बेटे यहां पर क्या है, ये occipital area, so what you will say, you have to say the our yes great auricular nerve because this is the auricle, the major nerve supply of the pinna, and then you have to say sir there is our greater occipital nerve, छोटी है तो लेजर ऑक्सीपिटल नर्व, एक और ऑक्सीपिटल की नर्व होती है थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। चार सेंसरी हो गए, एक मोटर, कौन है मोटर, यहां की अगर मोटर नर्व की बात करोगे तो एक ही नाम लेना सर, फेशियल नर्व, द ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व व्हिच इज बिहाइंड द ईयर, तो क्या नाम देंगे सर, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ये कान के पीछे इसलिए पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व कहेंगे। गेटिंग द पॉइंट, यस। इसी तरीके से पांच क्लिनिकल फिर आपको पढ़ने हैं, यू हैव टू लर्न अबाउट द डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प, black eye, then cephal hematoma, caput succedaneum, and also we have to learn for the surgical layers of the scalp. तो ये पांच क्लिनिकल खत्म हो गया, ये है ना। सो वी विल सी इन आवर अपकमिंग पार्ट।